آیا تھا، لیکن وہ ایک صرف محض آپ کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، دھول جھونکی گئی تھی آپ کی آنکھوں میں، بٹوارا کیا گیا تھا۔ وہ جو ان کا گورنر سسٹم تھا، ان کی جو برٹش چین آف کمانڈ تھی، ان کی کمانڈ صرف چینج ہوئی تھی، باقی نیچے کی نیچے کی جو فورسز تھی وہ آپ پہ آج بھی مسلط ہیں، کیونکہ آپ کے ملک کے آرمی چیف کا فیصلہ کبھی آپ کے ملک میں نہیں ہوا، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا فیصلہ آپ کے ملک میں کبھی نہیں ہوا، آپ کے ملک کے کسی صدر کا فیصلہ آپ کے ملک میں نہیں ہوا۔ یہ پہلی بار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے، آپ کو ایک لیڈر پچھلے 27 سال سے اس کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اس ملک کو مادر وجود میں لایا گیا تھا، جس کی جدوجہد ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم نے کی تھی، کہ اس ملک کا جو مقصد تھا، وہ اس ملک کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ مقصد کہ اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیرا میرا رشتہ کیا، محمد الرسول اللہ، ہم محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کی دین اس کی سنت پر چلنے والے ہیں، اس کے جیسے صبر پر تعلیم یافتہ ہو کر ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے اپنا نعرہ پہلے تبدیل کرنا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ، محمد الرسول اللہ۔ اس کو سمجھے، پچھلے 27 سال سے ایک لیڈر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اس بنیاد پر ایک قوم، متحد قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھو گے، آپ نکلو گے، تو وہ آپ کے دلوں سے خوف ختم کر دے گا، وہ آپ کو غلامی سے آزاد کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، آپ نے خان صاحب کی ہر سپیچ میں ہمیشہ یہی سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، خوف کے بت توڑو، اللہ پہ توکل کرو، ایک دوسرے کا بازو بنو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو اور باہر نکل آؤ۔ اب بہت ہو گیا یہ کفر کا نظام، یہ جبر کا نظام، آپ کے ایمان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرو۔ ہم نے مرنا ہے ایک دن، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ایسی قومیں گزری ہیں، 500 سال پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ آج وہ قبروں میں ہے، ہم نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ کیوں نہ کچھ ایسا کام کر جائے کہ جو ہمیں ہماری آخرت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی ہو، ہمارے لیے وہ لوگ دعائیں کریں کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے کچھ خیر کا کام کر گئے تھے، ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر گئے تھے، ہمارے لیے انہوں نے آخری سانس تک اپنی جد و جہد جاری رکھی اور اپنی جانوں کے نذرانے قربان کیے۔ خدا پاک کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم لوگ روز محشر کھڑے ہوں گے تو رسول پاک خوشی سے سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھیں گے کہ یہ ہے میری قوم، جس کے بارے میں کہتا تھا کہ مجھے اس قوم سے بہت پیار ہے، جو آخری دور میں آئے گی، جو مجھے دیکھے بغیر، جو مجھے جانے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی اور میری سنت پر عمل کرے گی اور میرے کہے ہر ایک میسج پر عمل کرے گی اور جد جہد کرے گی۔ آپ وہ قوم ہو، پاکستانیوں، مسلمانوں، آپ وہ قوم ہو، آپ وہ امت ہو۔ خدا را لا الہ الا اللہ پڑھو، نکل آؤ باہر۔ ووٹ یو ایفٹی بھائی۔ بول سکتی ہوں پلیز؟ جی بالکل، شور، گو ہیڈ۔ تھینک یو۔ راہ راست بھائی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ آج تک مسلم امہ کا کوئی بھی لیڈر آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی لیڈر
ऐसा था जैसा इमरान खान था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में जाके कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और हमें जब हम दिल को के तकलीफ़ हमें बहुत होती है जब कहें। आज तक पूरी मुस्लिमत उम्मा के लीडर में से किसी ने भी नहीं कहा था। उस लीडर को आप लोग कैसे गंवाना चाहते हो? आप लोग कैसे उस लीडर का साथ नहीं देना चाहते जिसने एक ऐसी जगह पे बैठ के उनके कान खड़े हो गए कि जब इमरान खान ने वहाँ पे ये बात की, तब से ये इन्होंने ये 2023 अभी जा रहा है, इन्होंने 2018 में इन्होंने प्लान बना लिया था जब इमरान खान ने 19 में, तो 2019 में इन्होंने प्लान कर लिया था जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में ये तकरीर की। तो उस वक्त यहूदियों के और अमेरिकन के कान खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि ये तो एक एक पूरी बना देगा, मुसलमानों को इकट्ठा ना कर दे। इस खौफ में उन्होंने किया कि इमरान खान के ऊपर इस तरह से क्रैक डाउन करवाए। ये बेवकूफ़ लोग, इनको कौन समझाए कि एक घड़ी के लिए उसको जेल में बंद कर दिया गया। ये जो कुछ प्लान किया गया, ये सारा कुछ इमरान खान को सिर्फ इस वजह से कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किया। बस मुझे एक बात का दुख है कि हमारे लोगों को कब समझ आएगी, हमारे लोग कब समझेंगे इमरान खान अपने लिए थोड़ा ही कुछ कर रहा है। भाई आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए उसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, उसने शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारी है। वो शहजादों वाली ज़िंदगी करके ठंडी जेलों में पड़ा हुआ है कि जहाँ पे उसको कोई लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है। वो पागल है। वो एक मैंने वीडियो देखी है कि वो कहता है वोट मेरा पागल का है, कि जो पागल है कि जो हम लोगों के लिए कर रहा है। वो पागल है जो सर्दियों में जेल में बैठा हुआ है। वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए सोच रहा है। खुदा का वास्ता है, अगर अब भी आंखें नहीं खोली तो ये जो आर्मी के अंडर आप लोग बैठे हुए हैं ना, ये कभी भी नहीं छूटेगा। ये पहला शख्स था जिसने शऊर दिया कि हम लोग क्यों नीचे जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं अपना आप को खड़ा कर सकते। इस लीडर को ज़ाया कर दिया तो कभी भी फिर कोई और इमरान खान नहीं आएगा। यहाँ पे जितने भी कोई हीरो आए ना, आपने उनको देखा कि उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने एटम बम बना के दिया, उसको किस तरह से इन्होंने डाउन किया कि इसने कहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कि गौरी मिसाइल का रुख करो इसराइल की तरफ, तो उसको किस तरह से इन्होंने किया। ये अगर एक दफ़ा ज़ाया हो गया ना तो समझ लें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और खुदा का वास्ता है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना है। इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान नहीं जाना, और ना वो वहाँ पे जाएंगे। उस ऐसे मुल्क में वो जाके क्या करेंगे, कभी भी नहीं। और सिर्फ आप लोगों के लिए आपने उसकी कदर करनी है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बहुत ही दिल दुखता है। इमरान खान ने तो मुझे बीमार कर दिया। मैं जब से इमरान खान जेल में गए थे, मैंने ज़मीन पे सोना शुरू कर दिया था। मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। अभी मैंने सोचा था मैं वोट डालने पाकिस्तान जाऊँगी। मैं एक दिन भी पहले ठीक हो गई ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने का मर्ज़ी टिकट हो जाए। मैं अगर वोट मेरे खून के साथ, आप यकीन जाने मेरे में जो जज्बा है कि मैं चाहती हूँ कि अगर वोट ज़ाया ना हो जाए ना तो मैं अपने खून से इमरान खान को वहाँ पे स्टैंप लगाऊं। पता नहीं आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं। मेरा बहुत कुछ बोलने को दिल करता है, मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, मेरे गले में खारिश शुरू हो जाती है। मैं और किसी भाई को मौका देती हूँ, प्लीज़ आप बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप थोड़ा रेस्ट कर लें, हमें बताएं, जब भी आपका दिल हो हम आपको माइक वापस देंगे। मलिक उमर भाई आपके पास था। मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, नीचे हमारे तकरीबन 50 भाई बहन सुन रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। देखो, हम पास में जितनी भी बातें करें वो ओबीसी पास में है, मगर अपने खान साहब ने कॉल दी है। ओबीसी पहले तो कॉल देनी नहीं चाहिए थी, जिनको टिकट मिले उनको चाहिए था कैंपेन करें, मगर ओबीसी फॉर वट एवर रीजन वो नहीं कर रहे। तो कल जो है उन्होंने बरोज़ इतवार
कॉल दी है सारे पाकिस्तान में जितने कैंडिडेट हैं कि हर बंदा जो इसको टिकट मिला है अपने अपने हलकों में कैंपेन को शुरू करे और आवाम को लीड करे भाई पीसफुल। साहब भाई साहब जी आपको मैं जी बताऊं कि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, रात पूरी आज उन्होंने अरेस्ट करना है। लोग क्या करें, लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया है ना। मैं बताता हूँ सारा, आराम से मेरी बात सुनिए आप। देखें, जब हम यहाँ पर जब खान साहब थे ना बाहर, तो लोग कहते थे हम जान दे देंगे, खान को नहीं देंगे। सारे लोग, हम सब यहाँ पर भी हैं, वहां पर भी हैं, सब लोग वहीं पर हैं जहाँ पर हैं, एक्सेप्ट 25 शहीद हमारे और 2-4 और, तो मेरे ख्याल से 30 लोगों ने जान दी है। बाकी पूरा पाकिस्तान वही है, वही रोटियां खा रहे हैं, वही जो भी कर रहे हैं। एक भाई हम थोड़े दिन पहले आए थे, वो कह रहे थे पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, वहाँ सारा कुछ जो है ना रशीज होते हैं। एक भाई कह रहे थे कि भाई 3 मैकडोनल्ड में गए और उनको सीट नहीं मिली। ये लाहौर की मेरे ख्याल से वो बात कर रहे थे। तो लेट्स कॉल स्पेड स्पेड, ठीक है ना। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें उनको जगाना चाहिए। जब खान साहब ने इतने जलसे किए हैं, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 1.5 साल में उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 100+ जलसे किए हैं। अब मेरी नंबर सही शायद ना हो, मगर 50+ तो डेफिनेटली किए हैं। और फिर भी बार बार कॉलें आ रही है, उनको टिकट दे दिए हैं। 3000 people went to collect their tickets नॉमिनेशन के लिए। 3000 लोग कहाँ से निकले वल्लाह आलिम है, और 3 फ्लोर भर गए थे। अब वो पहले ये छुपे हुए थे, फिर एकदम निकले सेंट्रल ऑफिस में, इन्होंने टिकट लिए और फिर कहीं जाके गायब हो गए। तो ठीक है, वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, मगर जब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, इनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो जेल में तो इनका मुर्शिद है, जिसको ये मुर्शिद कहते हैं, जिसको ये लीडर कहते हैं, वो तो ऑलरेडी फर्श पे सो रहा है इस ठंड में। उसको क्या खाने को दे रहे हैं, क्या पीने को दे रहे हैं, कहाँ वो सो रहा है, कहाँ वो जाग रहा है, वो अल्लाह को पता है और उसको पता है। ठीक है, वो गैरतमंद बंदा है, वो हमें ओपन बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए अंदर है, पाकिस्तानी कौम के लिए अंदर है, उसको ये कॉल देनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये ठीक है, क्रैकडाउन हो रहा है, क्रैकडाउन में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। जब ये कहते हैं हमने जान देनी है, तो जान चली जाएगी, एक दिन तो सब ने जाना है ना। जिनको टिकट मिला है उन पे 1,00,000-2,00,000 लोगों का, एक हल्के में तकरीबन 1,00,000-2,00,000 लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खान ने उनको दिया है कि भाई आप लीडर हो, आप इमरान खान हो, आप निकलो। तो कल उनकी आजमाइश है, कल इतवार को खान साहब ने उनको कॉल दी है। ये सेमीफाइनल है। बाहर काफी लोग कहते हैं कि भाई 8 फरवरी को निकलेंगे, 8 फरवरी को निकलेंगे। जनाब, कल आपका टाइम है, आप दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको जेल हो जाएगी ना, और आपको क्या होगा। तो आपको टिकट मिला है, टिकट की आपने हिफाजत करनी है और उसके लिए आपने निकलना है। मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो खान ने, जहां तक मैं समझा, उन्होंने एक टिकट होल्डर को बोला है आप निकलो और अवाम उनके पीछे आएगी। जहां पर टिकट होल्डर नहीं निकलता, अवाम खुद निकले, और जाहिर बात है फिर अवाम को टिकट मिलना चाहिए, उस बंदे से या बंदी से लेकर अवाम को मिलना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, मुश्किलात होती है। हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी लाइफ को सीरियस थ्रेट है, तो आप सब लोगों को पता है उनके नाम। ठीक है, वो अरशद शरीफ के दोस्त भी थे, तो उन पे तो ऑन द साइड शूट का उनके पे निकला हुआ है पर्चा कि भी उनको शूट ही कर दो, उनको पकड़ना भी नहीं है। तो उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे तकरीबन 800 लोगों ने टिकट लिया हुआ है, तो उनको चाहिए कि भाई अपने मुर्शिद को, जिनको ये मुर्शिद समझते हैं, उन्होंने इनको टिकट दिया है, उनके लिए कल वो निकलें और आवाम उनके पीछे निकलेगी। तो मेरा क्वेश्चन सबसे है कि कितने % टिकट होल्डर निकलेंगे और कितने % आवाम निकलेगी। तो आप लोग अपनी बात भी साथ साथ में करें, मगर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। तो मैं क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। वैसे सारा, अगर आप इसका आंसर दे दें तो फिर मैं लेके जाता हूँ अपने मलिक साहब के पास, और फिर एक कयूम आपके पास आएंगे बारी बारी। जी, आप क्या कहते हैं, कितने % टिकट होल्डर निकलेंगे और कितने % आवाम निकलेंगे। जी, मैं ये कहती हूँ ना कि जितने भी टिकट होल्डर है ना, उनको तो पहले से बता दिया गया था कि आप लोग क्रैकडाउन होगा, वो आप लोग सेफ जगह पे चले जाएं। मुझे लगता है कि टिकट होल्डर्स इंशाल्लाह सारे निकलेंगे और लोग भी बहुत सारे निकलेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि कल का नक्शा कुछ आपको और दिखाएगा। जो मैं नॉट ओनली सोचती हूँ, मुझे पता है कि ऐसा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। टिकट होल्डर सारे वो अपने अपने घरों पे नहीं है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो सेफ जगहों पे चले गए हैं। और सारा कुछ आप नीचे जो मैसेज लिख रहे हैं स्टैब्लिशमेंट के लिए, 100% स्टैब्लिशमेंट का ये कार्रवाई होती है कि वो बंदे को अपने उसके कांधों पे बिठा के लाते हैं और उनके अपनी मर्जी के मुताबिक उनको चलाते हैं। जब उनको कोई ना सुने तो उसको उठा के फेंक देते हैं। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए कि अब स्टैब्लिशमेंट सब जो है ना, उनको बैरकों में भेजना चाहिए। वो कभी भी जो है ना, वो ना करें कि
सियासत में उनका, जब ये लोग ये ओथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन सियासत चलाते ही यही हैं। ये इन जालमों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये कहते हैं पाकिस्तान के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन फौजी हैं, नॉट ओनली द फौजी, जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। फौजी जो बेचारे हैं वो तो इनके सल्यूट मारने के लिए इनको रखा हुआ है खाली। ऐसा करते हैं कि ये जनरल जो है ना, जो ऊपर के खाते हैं, जो मज़े उड़ाते हैं, जो अयाशियाँ करते हैं, शराब नोशी, जानी, हर किस्म का कार्रवाइयाँ ये करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं भाई आपको एक बात बताऊं कि आपने जिसको भी ऊपर लेना है ना, आपने उसकी आईडी ज़रूर देख के, क्योंकि ये आईडी उस दिन मैं किसी लाइव में थी मैं बात कर रही थी, कोई बंदा ऊपर आया, उसने इमरान खान का फोटो लगाया हुआ था और उसने क्या किया कि सीधा आके मुझे गालियां देना शुरू कर दी। और मैं कभी भी उस दिन के बाद मुझे इतना डर लगा। देखे, मैं यहाँ पे टीचर हूँ यूके में, मैं अपने, मेरी भी एक रिस्पेक्ट है, मुझे कोई अच्छा लगा होगा कि वो बंदा आके स्ट्रेट वे मुझे गंदी गंदी गालियां देना शुरू। उसने फटाफट उसको नीचे तो गिरा दिया, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। आप जिसको जानते नहीं हैं, आप उसकी बिल्कुल भी उसको ऊपर नहीं लेना प्लीज। जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात करूंगा कि देखें, आपने बराबर सी ठीक बात की है कि भाई वो खान ने उनको बोला कि वो छुप जाओ। अभी खान का मैसेज लाउड एंड क्लियर था, अगर कहें तो मैं सुनवा भी दूंगा आप लोगों को। थोड़ा सा डिबेट आगे चलने दे, मैं आप लोगों को सुनवा भी लूंगा कि इसमें क्लियर कट है कि सारे कैंडिडेट निकले। ऑल कैंडिडेट मीन ऑल कैंडिडेट। समझे और नहीं दूसरा है आप आज, आप समझे नहीं है, आज की रात के लिए उन्हें कहा गया है कि आप अपने घरों में ना रहें, क्योंकि छापे पड़ेंगे और आपको अरेस्ट कर लेंगे। सिर्फ आज की रात के लिए, वो कल अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। जी, मैं वो मैसेज आपको सुनवा लूंगा। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने, आपको किसी, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, तो आपने कहा कि भाई जर्नैलों के अलावा, तो आज तक किसी जर्नैल ने इमरान खान को कॉलर से पकड़ के नहीं निकाला, ना किसी जर्नैल ने शीशे तोड़ के अदालत से इमरान खान को लेकर गए हैं, और ना ही किसी जर्नैल ने वहां पर जाके आपको जमान पार्क पे गोले बरसाए हैं, वो आंसू गैस बरसाई है, ठीक है ना। वो इन्हीं लोगों को यूज करते हैं, आपके पुलिस वालों को, आपके फौजियों को, आपके कमांडोज को, जो भी आपके हैं। तो ये सब हैंड इन ग्लव्स हैं, ठीक है ना। इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। वो बॉर्डर पे जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लोग हैं। जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए आप, क्योंकि वो बेचारे रोटी को भी तरसते हैं, वो हमारे लिए जाने देते हैं। और जो लोग भी कंटोनमेंट में होते हैं, वीगो डाले जो है ना, ये जर्नैल कोई नहीं चलाता, ये यही लोग चलाते हैं। तो आपने इनके साथ बिल्कुल, इनको स्पेड को स्पेड कहना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इसे एग्री या डिसएग्री हो सकती हैं, मगर बगैर इन लोगों के जर्नैल खुद कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 जर्नैल हैं, ये जो ऊपर के ओहदे पे बैठे हैं। 6 लाख नीचे लोग हैं, जो इनकी बंदूकें हैं, जो इनके डंडे हैं, उनसे ये स्ट्रेंथ लेते हैं। अगर आप फुटबॉल की टीम का मैं एनालिसिस आपको दूं, जो फुटबॉल की टीम होती है, उसमें जनाब आपका मैनेजर जो होता है ना, वो स्टेटिस्टिशियन होता है, उसकी सारी सोच होती है, मगर वो फिजिकली एक बॉल को किक नहीं करता। सारे जो उसके प्लेयर होते हैं ना, वो प्ले करते हैं, मगर क्रेडिट सारा मैनेजर को जाता है कि भाई ये जीता या हारा। तो फिजिकल जो रियल ग्राउंड पे होते हैं वो उसके प्लेयर होते हैं। तो इसी तरह जो आप जर्नैलों की बात करें, जर्नैल 100% वो स्टेटिस्टिशियन होते हैं, और हर चीज के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। मगर इनको आप बरी जमा नहीं करते, जो उनको सैल्यूट करते हैं, जो उनके वीगो डाले चलाते हैं, जो आपके घरों में आते हैं, और जो आपकी क्या कहते हैं दस्ती की बीवी को आप उनके साथ क्या करते हैं, या बाकी घरों में छलांगे मारते हैं। आज तक किसी जर्नैल ने किसी की दीवार नहीं छलांगी। यही आपके नीचे जो वीगो डाले चलाने वाले हैं ये करते हैं। तो यस, 99% आप जर्नैलों को उसको ठीक है रखें इल्जाम, मगर ये 1% या 10% इनको भी दें, ठीक है ना। ये भी कोई पार्ट इनका भी है। अगर ये उनसे हाथ खींच लें तो कोई जर्नैल जो है ना वो अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता। तो एनी हाउ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरा, आपने बोला कि भाई नीचे से आप देख कर उठाएं। हम कोशिश करते हैं कि भाई देख के बंदों को उठाएं, मगर ऑब्वियसली किसी के मुंह पे या लिखा नहीं होता कि वो किस वालदैन का बच्चा है या किस खानदान से आया है। तो कोई अपनी वो क्या कहते हैं दिखा दे, तो उसके लिए हम ऑब्वियसली पहले से एडवांस में माजरत कर लेते हैं। मगर हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा ना करे, जो कर ले तो कर ले। मगर जैसे खान को गोलियां पड़ी हैं, खान पे लोगों ने बड़ा कीचड़ उछाला है, हमारा खान भी उनको माफ कर देता है। तो हम भी आप लोगों से कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली गलौज दे तो आप माफ कर दिया करो, क्योंकि हमारे जो है एक तारिक जमील का मैं लेसन वो लेक्चर पढ़ रहा था, सुन रहा था,
تو اس میں انہوں نے بولا تھا آپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں. پرسنلی اس ٹائم پہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں بٹ وی نیڈ ٹو اگنور دیم. جب ہم ان کے ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ الٹریٹ لوگ ہیں. آپ نے خود بولا آپ ٹیچر ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کلاس میں چھوٹے شیطان بچے بھی ہوتے ہیں بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وہ شیطان بچے کو آپ اٹھا کے کلاس سے باہر پھینک دیں. تو آپ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار انسان کا بچہ بن جاؤ. تو یہاں پر بھی اگر کوئی آتا ہے اور بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ان کو یہی بولیں گے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جاؤ اور پلیز گالی گلوچ نہ کرو. تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا میری کسی بات کو. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو آپ ریلی I'll give you the mic to rebuttal if you need. پھر میں آگے مائک کو لے کر چلتا ہوں. جی سارا علی خان, سارا علی یو کے, سوری. میں بات کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھروں میں چھلانگے لگا کے گئے, عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا. کئی مہینے ہو گئے بچوں والی عورتوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کو کیا لگے کہ اگر کسی کو آ کے گالی دے دی تو جن لوگوں کو ان ماؤں بہنوں کی عزت کا احساس نہیں ہے, میں ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی. میں نے اپنے خان کے صدقے میں نے وہ گالیاں بھی ایکسیپٹ کر لیں. میرا کام نہیں تھا وہاں پہ بولنا. میں تو شاک ہو گئی تھی کہ ایک دم سے یہ بندہ کوئی کون ہے جو آ کے اتنی گندی گالیاں دے رہا ہے. لیکن انہوں نے بھی بہت پھر معذرت کی کہ جن کی لائف تھی. وہی بات ہے کہ ان کو پڑھے لکھے کم ہے اور ان کو پڑھانا اب بہت مشکل ہے ان پٹواریوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں نے اپنے خان کے صدقے میں نے وہ گالیاں کھا لی ہیں. یہ مجھے گولی کھا لوں ان کے لیے تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. خان کے لیے میری جان جا سکتی ہے تو میں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا. خالی یہ تھا کہ اس وقت بہت بےزتی فیل ہوتی ہے جب سارے مرد بیٹھے آپ لوگوں کے سامنے, مجھے کوئی ایسی آ کے گندی گالیاں دے گا تو شرم تو آئے گا نا. معذرت میری بہن, ہم بھی آپ کی بات سن کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو ہمارے سامنے اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں کیا گزرتی ہمارے سب کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں. سب جو بھی یہاں پہ سن رہے ہیں میرے بھائی, آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بھی جس بھی پارٹی سے ہے, آپ لوگ اپنا ذاتی اختلاف ہو, ہر ایک ہوتا ہے, ہر ایک کو اپنا حق ہے اختلاف رکھنے کا, اپنا حق کی رائے اظہار کرنے کا. لیکن ایک چیز کا آپ لوگ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہیں, اور آپ جن کو بھی اٹھا کے جن کے جس بھی اعضاء کے بارے میں بھی اگر بات کریں تو آپ سوچیں آپ کے گھر میں بھی وہی چیزیں ہیں. سو بغیرتی کی انتہا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے سوچ لیں آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن بیٹی کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, بس اتنا ہی کہوں گا. بس وہ اپنی تربیت دکھا دیتے ہیں نا کہ جتنا جس کا ظرف ہو اگنور کرنا چاہیے. جی اچھا, سنس فوزیہ خان نے آپ نے مائک کھولی ہے تو آپ کا کوشچن آپ کے پاس آئے گا کہ کوشچن ہم نے کیا تھا, یہاں رکھا تھا کہ کل جو ہے خان نے کال دیے تو کتنے پرسنٹیج ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے پورے پاکستان سے اور کتنے پرسنٹ عوام نکلے گی. جی اوور ٹو یو. جی اگر ہم کہیں کہ صرف عوام نکلے اور یہ ٹکٹ ہولڈر جو ہے یہ آرام فرمائے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا میرے خیال سے. ان کو انکریج کریں, خود نکلیں گے, پہلے اگزامپل بنے, اپنی مثال دیں کہ ہاں دیکھو, اپنے آپ کو مثال بنائیں کہ دیکھو ہم نکل رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر قوم کا حوصلہ بھی تو عوام کا اسی طرح سے بڑھتا ہے کہ جس لیڈر کو ہم مطلب چن رہے ہیں, جو ہمارے حلقے سے کھڑا ہے, وہ اگر اتنی ہمت دکھا رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. کل اتوار والے دن آپ نے سب نکلے, لیڈر بھی نکلے, میرے خیال سے برابر نکلے, آئی مین سائڈ بائی سائڈ نکلے سب ایک دوسرے کے. تو کیا ہے کہ عمران خان نے تو اپنا کام کیا, انہوں نے یہ جو مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر, یہ جرنیل, یہ کچھ جرنیل جو ہیں اور یہ جو کچھ کرپٹ سیاستدان جو زبردستی لا کے ہمارے سروں پہ لگا رہے ہیں, ان کو بٹھا رہے ہیں, ان لوگوں کی بنیادیں جو تھیں وہ تو خان صاحب نے ہلا کے رکھی ہوئی ہیں. ان سب کو ایسا ذلیل و خوار کر دیا ہے ان لوگوں کو کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے زبردستی یہ جو کریک ڈاؤن کرنا, قانون کے خلاف چیزیں کرنا, جو کہ کسی بھی ملک میں ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. ہر ایک ملک میں آزادی ہوتی ہے کہ وہ ووٹر کو بھی اور
जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी कि आज़ादी से अपनी अपनी जो मुहिम होती है उसकी इलेक्शन की उसको चलाएं। मगर इस मुल्क में हमने कोई न्यारा और दुनिया से डिफरेंट कानून देखा है। वेल इस पे क्या बात करें कि दुनिया में जो हो रहा है उसमें से कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहा। कोई भी कानून, कोई भी आइन, कुछ भी किसी चीज की के ऊपर जो है ना वो नहीं किया जा रहा अमल। तो अगर कल जो है ना मुकम्मल तौर पे अपनी ताकत दिखा दें सब जो है ना, मैं सोचती हूँ कि कल अवाम को एक चांस मिला है कि अपनी मुकम्मल ताकत दिखाएं ताकि वो दीवार जिसकी बुनियादें जो खान साहब ने हिला के रखी हुई हैं वो दीवार उसको वो गिरेगी। फिर उस ताकत को देखेंगे तो ये दुश्मन भी अपना हथियार जो है ये फेंक देंगे। अपने हथियार ये पहले भी थक चुके हैं, पहले भी इनमें रहा कुछ नहीं है। जो लोग ताकत दिखा रहे हैं इसका मतलब यही रह जाता है कि इनके पास कुछ भी बचा नहीं है। खान ने इनको पूरी तरह से जलील किया हुआ है। और फिर वही है कि ये थक चुके हैं और इस दीवार को सिर्फ एक कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को तो एक ही दिखे की जरूरत है, वो जो कल आप दिखाएंगे। तो वही है कि हर कौम के पास इस तरह के मौके भी नहीं आते कि उठो निकलो और अपने जो लीडर है उसके साथ अपनी यकजहती का मतलब इजहार करो, अच्छे तरीके से सपोर्ट करो। कहती है ना कि हाँ उस लीडर के लिए निकलो, उसको वोट और सपोर्ट करो। उस वो जो जिसने दुनिया के उसके सामने खड़े हो के इस चीज को बताया कि जब दुनिया में ये चीजें हो रही थी कि कहीं पे हमारे पैगंबर की बेहुरमती हो रही थी, बुक की हुरमती हो रही थी, हमारे अपनी जो कुरान पाक की, तो उसी ने ही जाके वहां पे खड़े होके बताया था कि पूरी दुनिया को कि हमारी रूह को तकलीफ होती है इन चीजों से। हमारे जब नबी की कोई गुस्ताखी करते हो इस तरह से या हमारी होली बुक की तो कुरान पाक की तो हमारे रूह को तकलीफ पहुंचती है। और कानून भी पास करवाया था कि इस तरह से। तो अगर मुझे बता देना कि ये जो मुसलत किए जा रहे हैं ये कब से मेरे ख्याल से सदियों से यही चीज हमारे साथ होती आ रही थी कि इजीली जिसका दिल करता जिसको मौका मिलता था हमारे मजहब के ऊपर उंगली उठाता, हमारे आके हमारे पैगंबर के ऊपर खाके बनाना, ये करना वो करना। तो कोई उस वक्त तो इनमें से कोई भी नहीं बोला था। तो इन्होंने कभी भी अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो अगर हमारे खान ने सबसे पहला स्टेप ये लिया था कि अपने मजहब को अपनी कंट्री को इज्जत दिलाई थी। उन्होंने उन्होंने इज्जत दिलाई थी कि किस तरीके से हमारी रूह को तकलीफ होती है जब आप लोग ये चीज करते हो तो इसको बंद होना चाहिए। तो फिर क्यों ना उसके साथ खड़ा हो जाए, क्यों नहीं कल निकल के तो उसको बताया जाए जो उस कैद में रह के तो इन 25-26 करोड़ लोगों की आजादी के लिए लड़ रहा है। उस वो 70 साल का इंसान अगर ऐसा कर सकता है तो ये अवाम क्यों नहीं कर सकती। और फिर इन कौमों की जिंदगियों में इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं कि अगर इस लीडर को बचा लो, इसी में आप लोगों की भी बका है। जी मैं तो यही कहूंगी आप लोगों कि को वोटर को भी निकलना चाहिए और कैंडिडेट्स को, सबको। जी परसेंटेज आप कितनी देंगी, परसेंटेज टू द टिकट होल्डर और परसेंटेज टू द टिकट वोटर्स? होल्डर का मैं सच बोलूंगी कि मुझे अवाम के मुकाबले में टिकट होल्डर्स का लगता है कि वो थोड़ा सा हेजिटेट होंगे निकलने में, थोड़ा हिचकिचाएंगे निकलने में। अच्छा, सब मगर जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक मैसेज सुनवाना चाहता हूँ। ये आप सुने तो फिर हम अपनी बहस कंटिन्यू इनको करेंगे। हमेशा जस्ट इन केस चेरी ऑन केक खाने की आदत पड़ गई है, इनको निकलना पड़ेगा कल। जी अभी मैं वो एक सॉरी। मैसेज ऑफिशियल मैसेज आप लोगों को सुनवाता हूँ, तो वो आप सुने तो आपको पता चल जाएगा हमने आज का जो क्वेश्चन रखा है वो क्यों रखा है। तो ओवर टू यू गाइस, लिसन, आप इसको आराम से सुने। रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अयूब खान है और मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल हूँ। बहुकम वजीर आजम और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, आप ख़वातीन हज़रात ने सुना होगा कि जिस तरह के उन्होंने फरमाया है और इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि
बरोज इतवार 2 बजे 28 जनवरी सन 2024 को पाकिस्तान की जितने भी हल्के हैं वहां पे हमारे कैंडिडेट्स हों, हमारे पार्टी के ओहदेदारान हों, हमारे एक्टिविस्ट हों और पाकिस्तान की अवाम हो, आपसे अपील की जाती है कि आप रैलीज का इनेकाद करें, उस पे जोक दर जोक उसमें हिस्सा लें, उसके लिए एहतमाम करें। और ये हमारा आईनी हक है ख़वातीन हज़रात, जिस तरह की बाकी सियासी पार्टियां रैलीज भी निकाल रही हैं, जलसे भी निकाल रही हैं, इसी तरह आइन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी पार्टियों को ये आईनी हक दिया हुआ है और हम लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और इस पे मेरी अपील होगी और ये हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब और पार्टी चेयरमैन का हुक्म भी है कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से यह रैलीज हम निकालनी है। रैलीज का जहां पे पॉइंट होंगे वहां पे आपकी मुकामी लीडरशिप जो है वो आपको बता देगी ख़वातीन हज़रात, कल तक वो फहरिस्त आ जाएगी, वहां पे जोक तक जोक आप उसका इंतजाम करें। बिल्कुल पुरअमन तरीके से आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल करना है और ये क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है और इस पे हमने अपना दिखाना है, अपने वोटर सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना है, आवाम को मोबिलाइज करना है, क्योंकि 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला पोलिंग होगी। और इलेक्शन के दौरान 8 तारीख को मेरी आपसे ये भी अपील है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का इंतजार नहीं करना, आपने खुद कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करना है, आपने खुद डोर टू डोर कैंपेन करनी है, आपने खुद इमरान खान साहब के उम्मीदवारान का इंतखाबी निशान की जांच पड़ताल करनी है और आपने खुद इमरान खान बन के हर एक दरवाजे तक पहुंचना है और इंतखाबी निशान उनको बताना है उनके उम्मीदवारान का। और उसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात आपने उन लोगों को कायल करना है कि जाके पोलिंग स्टेशन तक अपनी वोट कास्ट करें, वोट डालें, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद उस वोट की आपने पैरवी भी करनी है कि रिटर्निंग अफसर तक वो बक्से बहिफाजत पहुंचे। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा हम सबको ये तलकीन दिया, सिखाया है कि ये मुल्क है तो हम हैं, आपने पुरअमन रहना है, आपने अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करना है, आपने पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान की सालमियत को हम सब ने मजबूत करना है, हमारी जान इस मुल्क के लिए हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये मेरे ख्याल से लाउड एंड क्लियर है कि इसमें क्लियर कट खान साहब की तरफ से मैसेज है कि भाई टिकट होल्डर ने निकलना है और आप छोटी छोटी पुरअमन रैलियां निकालें, आप कॉर्नर मीटिंग करें, मगर किसी तरीके से भी आप लोगों ने निकलना है। मेरे ख्याल से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। तो मेरे ख्याल से अब वो क्वेश्चन की आपको डेप्थ का पता चल गया कि हम क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कल मेक और ब्रेक है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं निकलता या कोई एक्सक्यूज बनाता है तो शायद उसका टिकट भी रिप्लेस कर दिया जाए हल्के से, या उससे ले लिया जाए या उसको दूसरा हल्का दिया जाए। तो वो कल देखेंगे इंशाल्लाह, मंडे पे फिर इस पे डेफिनेटली बात भी होगी। तो अब फौजिया खान, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ कि नहीं, कि भाई ज्यादा लोगों को कैंडिडेट को निकलना चाहिए कि नहीं, वो आपका मौकफ वही है? निकलना तो चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से उनको निकलना चाहिए, क्योंकि अगर खान साहब ने कहा है तो ज़ाहिर है अगर उनके लिए उन्होंने इनको टिकट दिया है तो फिर इस चीज़ पे अमल करना चाहिए उनको, और पूरी तरह से सबको निकलना चाहिए, ताकि आवाम का हौसले भी बढ़ेंगे इस तरह से। तो मैं सोचती हूँ कि हर एक टिकट होल्डर को बाहर निकलना चाहिए और आवाम के साथ। जी जी, बहुत जबरदस्त। मलिक उमान, आपके पास हम आते हैं वापस। अब वही क्वेश्चन आपके पास आता है, तो जी पहले आप बताएं आपका दिन कैसे गुजरा, एंड सेकेंडली क्वेश्चन आपके पास वही आ रहा है। जी, ओवर टू यू मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मेरे पाकिस्तानियों भाई, सब कैसे हैं? ठीक है। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, अल्लाह का बहुत करम फजल है। तो सर, आपने जो सवाल रखा है इसका मैं जवाब देता हूँ कि ये जो सूरत हाल चल रही है ना, दिल तो चाहता है 100% निकलें सब लोग, सब भाई, लेकिन इसकी आपने पॉइंट ऑफ पूछे तो 70% है अवाम और 50% ये जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के। ठीक है।
उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है, मैंने अपना थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों के सामने रखना था कि देखिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अभी जो हमारे सामने पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है, जो जुल्म का बाजार सरगर्म है, इसकी कौन आवाज़ उठा रहा है पाकिस्तान में? कौन माओ बहनों के साथ जुल्म हो रहे हैं? चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ठीक है। खान साहब को जेल में नाहक रखा हुआ है, ठीक है, और झूठे केस से डाले जा रहे हैं। और कोई भी आप अदारा ले लें पाकिस्तान में, हक पे नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये अभी टर्निंग पॉइंट है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है और खान साहब को अल्लाह पाक ने हमारे लिए चुना है। तो हमें चाहिए कि एक बहैसियत अच्छी कौम बन के खड़े हो जाएं। आज नहीं खड़े होंगे तो कल हमारी औलाद भी ऐसे ही, जैसे आज हम परेशान हैं, तकलीफ में हैं, परदेशों में बैठे हैं, घर से बाहर, फैमिली से दूर, ऐसे कल को हमारी औलादें भी ऐसे ही इसी हाल में होंगी, ठीक है। तो खान साहब की जो बात है ना, खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है। उन्होंने जद्दोजहद बहुत की है, अभी उनकी एज 70 से प्लस है। उन्होंने अपनी जो अल्लाह ने जो उनसे काम लेना था वो ले लिया है, ठीक है। अभी हमारी बारी है, हम आवाम की बारी है, हमारा हक बनता है कि हम खड़े हों, ठीक है। ये देखें, अभी खान साहब, वो जो बात हम करते थे, खान साहब हमारी रेड लाइन है। अभी देखिए कितने महीनों से खान साहब को जेल में रखा हुआ है। हम 22-24 करोड़ आवाम है, ठीक है। तो हम एक घंटा कहें ना, एक घंटा भी वो जेल में नहीं रख सकते, लेकिन ये आवाम सोई हुई है, पता नहीं ये कब जागेगी। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, अल्लाह इनको सही और गलत का फ़र्क करना के अल्लाह पाक इनको ज़हन दे, तौफीक दे। तो बात ये है कि हमें अभी निकलना चाहिए, 100% निकलना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट को भी, आवाम को भी, ठीक है। और निकलें और अपना जज्बा दिखाएं, ताकि इनके जो ये सोच रहे हैं, ये इन्होंने अपने अंदर एक सोच रखी हुई है कि ये हम पीछे को हम बैक पे कर देंगे, ये इनकी सोच को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी बात कि हम बहैसियत कौम आज नहीं खड़े होंगे ना, तो जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी, ठीक है। सब मलिक साहब अभी जो बात कर रहे हैं, इस पे मैं आपको एक ऑफिशियल एक और मैसेज सुनवाता हूँ सब भाइयों बहनों के लिए। जी ओवर, ये सुने जरा। तो बच्चे हमें कभी माफ नहीं करते, जद्दोजहद से पीछे हटे तो ये हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अब है जहाद, पॉलिटिक्स नहीं है। निकलो के अलम हक का बुलंद हम ही करेंगे, खत्म निजाम जबर कहर हम ही करेंगे। निकलो के ये अंधेरे छटे रोशनी मिले, निकलो के अब अजान सहर हम ही बनेंगे। अब दुनिया को दिखा दें कि पैसे और जुनून की जंग में नौजवानों का जुनून इंडिया पाकिस्तान बनाएगा। हकीकी आजादी की मंजिल आपके वोट की दूरी पर है। अपने लीडर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इतवार 28 जनवरी से उम्मीदवारान की मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम के आगाज के साथ ही कारकुनान दोपहर 2 बजे पाकिस्तान के हर हल्के से रैलियों का इनेकाद भी करेंगे, जो शहर के मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर होंगी। पाकिस्तान तैयार रहो, निकलो अपने हक की खातिर, नस्लों के बेहतर कल की खातिर। 8 फरवरी जुल्म का बदला वोट से,
सारे पाकिस्तानियों पर ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, इस जिहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। फिर से आपको कहता हूं, पीछे हट गए मुल्क का मुस्तकबिल क्या। जी, आप लोगों ने सुन लिया कि खान का मैसेज है कि भाई ये आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, और अभी आपके पास ये कल का जो दिन है कल से शुरू होना है, और अल्लाह का नाम लेकर, क्योंकि ये नाउ और नेवर वाली बात है। कल शुरुआत है और इंशाल्लाह 8 फरवरी तक इसकी तैयारी होगी। अगर कल आप लोग नहीं निकले तो इसका मतलब है कि भाई कंपनी को पता चल जाएगा, कंपनी आप पे हावी आ जाएगी। तो ये एक असाब की जंग है, इसमें कोई लड़ाई जड़ाई नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि भाई खान की आवाज़ पे लब्बैक करें। तो कहते हैं ना, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आवाम के पास है, हम ओवरसीज से सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं है अगर हम और कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ है तो आप लोग हमें इसको गाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आए हैं ज़ुहैब मूसा भाई। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आपकी आईडी मैंने पहली बार देखी है। मैं अपना डेकोरम आपको और अलमाश भाई को समझा लेता हूँ कि जो भी नया बंदा आता है हम उनको पहले माइक देने से पहले कहते हैं कि अपना वो तारुफ कराएं, फिर बताएं कि इस पार्टी को वो पसंद करते हैं, और उसके बाद अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें दे, या हमारी डिबेट में वो शामिल होना चाहते हैं। और साथ साथ में जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी सीट हम किसी और को देंगे। तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे भी क्यू होता है, हमारे जो रेगुलर पैनल बैठा होता है नीचे एक सीट को हम रोटेट करते हैं। तो जी ज़ुहैब मूसा, जी पहले बहुत माइक आपके शुक्रिया, पास है, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। मेरा नाम ज़ुहैब मूसा तारड़ है, मंडी बहुद्दीन से बिलोंग करता हूँ और हाल मुकीम स्विट्ज़रलैंड में हूँ मैं। तो भाई साहब, आपका ना आज टॉपिक है कि कल कितने लोग निकलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी हमारी एक बहन आई थी सायरा अली यूके से, जिस भाई ने भी उनको गालियां दी हैं, मैं उनको उस पे पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और अच्छा ज़ुहैब मूसा भाई प्लीज माइंड नहीं करना। देखो वो मजम्मत शुजम्मत में ना, यहाँ पर हमारे मरवत साहब आए थे, आपको शायद जी उनको जी जानते होंगे, यहाँ यूके में आए थे। उन्होंने पता है जलसे में खड़े होकर क्या हमें तरगीब दी थी। उन्होंने जी जी ना ही किसी के सलाम जवाब में या किसी की तारीफों के पुल बांधने में या माजरत में टाइम जाया ना किया करें। टाइम बड़ा कीमती होता है, टू द पॉइंट आया करें। तो ओके उस ओके मुद्दे पे ओके अगर आप बात ओके, ना करें, बेहतर। मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, माइंड नहीं करना, ठीक है मेरा भाई, टाइम बहुत नो कीमती है, नीचे प्रॉब्लम, नो और लोग बैठे प्रॉब्लम, हैं। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई साहब, इंशाल्लाह कल जो है ना 75% KPK से लोग निकलेंगे। पंजाब से तकरीबन 40-45% लोग निकलेंगे 1-1.5 घंटा। क्यों, 2 दिन पहले हमारे मंडी बहुद्दीन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जलसा था, तो कंडीशन इतनी ख़राब थी ना नून लीग की। जितने भी लोकल डिस्ट्रिक्ट है ना, लोकल डिस्ट्रिक्ट में तो सोचे भी नहीं ना PTI का। उसकी वजह यह है बरादरी सिस्टम। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ का जलसा हुआ है, कोई आदमी नहीं गया, फलाप तरीन जलसा हुआ है। बिलावल भुट्टो का भी जलसा था, वो भी फलाप तरीन जलसा था। हर बंदे की यही राय थी कि नून लीग का सफाया हो गया है, लेकिन 24 घंटों के बाद जितने दड़े हैं सब के सब चेंज हो गए हैं। बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे, जो PTI का नाम लेके कितना उन्होंने वोट बैलेंस इकट्ठा किया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक हाजी इम्तियाज़ के अलावा कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ। हाजी इम्तियाज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है और सबका MNA भी PTI का है, और अभी भी वो टिकट होल्डर है, लेकिन अभी तक वो एक जगह पे भी खुद नहीं जा सकता। तारक महमूद है, कोई भी हमारा जो कैंडिडेट है ना, वो बिल्कुल किसी जगह अपने घर में भी नहीं है। तो ये दिल को दिलासा देने वाली बात है। ये कौम हमारी 5500 माँ बहन को जब बावलपुर में ज़्यादती का निशाना बनाया गया तब नहीं निकली, ये कब निकलेंगे। सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया वो था जब 5500 बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ये कौम तब नहीं निकली। ये वो तस्बीह वाला जो मलंग बैठा हुआ है ना अडयाला जेल में, अल्लाह पाक कोई मौजज़ा दिखा दे तो दिखा दे, बाकी इस कौम से कोई उम्मीद नहीं है भाई। जज़ाकल्लाह। तो आपका परसेंटेज क्या है कि कितने परसेंट कैंडिडेट निकलेंगे और कितने परसेंटेज आवाम निकलेंगे, अगर उसका हमें आप बता दें। जी जी, 35-40% पंजाब से निकलेंगे, 75% KPK से निकलेंगे इंशाल्लाह। कैंडिडेट की बात करें या आवाम की, दो सेपरेट क्वेश्चन है। विद कैंडिडेट विद अवाम।
अच्छा 35 और 70%, ठीक हो गया। जी अब जी बात आगे, ठीक हो गया। अब अलमाश हसन आपके पास भी बस सेम है, क्योंकि पहली बार मैंने आपकी आईडी देखी है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और आप क्वेश्चन की तरफ आएं। जी ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को, मेरा नाम अलमाश हसन है। रिसेंटली मैं इटली में मौजूद हूँ। पाकिस्तान गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है। 2009 से मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और एक्स प्रेसिडेंट यूथ विंग गुजरात हूँ। आपने बात की, मैं पॉइंट पे आना चाहूँगा, बात की आपने कैंडिडेट्स की या अवाम की। देखें, ये हमारी अवाम वो अवाम नहीं है जो यूरोप में लोग मौजूद हैं कि किसी और को मारा जाए और वो लोग निकल आते हैं। हमारी अवाम वो अवाम है कि हमारे घरों से माँओं बहनों को उठाया जाता है, लेकिन हम लोग नहीं निकलते ये सोच के कि अभी बात हमारे घर पे नहीं पहुंची। ठीक है, रिसेंटली पेरिस में आपको पता है कि एक छोटा सा वाक़या हुआ और पूरे फ्रांस में हंगामे आराई शुरू होगी, क्योंकि ये वो कौमें हैं जो बाशऊर कौमें हैं, जो दूसरों के दुख को समझती हैं और जो अपना हक़ लेना जानते हैं। बदकिस्मती से हमें अपना हक़ लेने का नहीं पता, और बदकिस्मती से हम वो लोग हैं कि हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मूसा आएगा और आके फिर हमें बचाएगा। बाकी हम लोग, हमारे में इतनी गैरत नहीं है, ख़ासकर पंजाब भी हूँ मैं, पंजाब के लोगों में, कि हम लोग जो हैं वो ख़ुद ब खुद निकले। अब दूसरी बात आप करते हैं कि अवाम कल कितनी निकलेगी। जैसे मैंने पहले बात की है कि ये अवाम, देखें अभी हमारी अवाम उस लेवल पे है ही नहीं कि ये खुद ब खुद निकले। देखें, अगर इन्होंने खुद निकलना होता तो कितने महीने हो गए खान जेल में है। हम लोग नारे लगाते थे, हम खान हमारी रेड लाइन है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। तो क्या किया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसी तरह हम लोग अपने बस फेसबुक पे बैठ के, टिकटॉक पे बैठ के आके दो चार बातें करते और निकल जाते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, इवन जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिनको करना चाहिए वो भी नहीं कुछ कर रहे। अब अवाम हमारी बेसिकली इस वक्त इंतज़ार में है किसी मसीहा के। अकेली अवाम नहीं निकलेगी, अवाम वहाँ पे निकलेगी जहाँ पे कोई कैंडिडेट निकलेगा। मैं आपको अपने हल्के और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट निकलेंगे जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, जैसा कि आप लाहौर देख लें, पिंडी, इस्लामाबाद और इस तरह के जो मतलब मेन सिटीज़ हैं। बाकी अगर हम लोग पीछे नीचे वाले हलकों की बात करें, अगर मैं अपने हलके की बात करूं तो मुझे नहीं, अभी तक नहीं, मैं ग्रुप में भी ऐड हूं हमारे हलके का, मुझे अभी तक नहीं पता कि इन्होंने कौन सी जगह सेलेक्ट की हुई है, कहाँ पे इन्होंने इकट्ठे होना है, कहाँ पे इकट्ठे नहीं होना। हमारा जो हलका है बेसिकली चौधरी आबद रज़ा कोटला, वो वाला हल्का है। ठीक है, तो मुझे अभी तक नहीं पता, और आई थिंक सो कि जितने नीचे हल्के आते हैं कोई बंदा नहीं निकलेगा। ये मेरी पर्सनल राय है, हर बंदे की अपनी राय होती है। निकलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मेन सिटीज़ में लोग, लाहौर हो गया, जैसे कि लिबर्टी वाली साइड पे आ गए, पिंडी, इस्लामाबाद, इस तरह जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, और वहाँ पे उनके साथ अवाम निकलेगी। जहाँ पे कैंडिडेट नहीं निकलेगा वहाँ पे अवाम अकेली कोई एहतजाज नहीं करेगी, किसी भी जगह पे आपको कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। ये आप कल देख लेंगे। कहने में दुख भी होता है, शर्म भी आती है, लेकिन हकीकत यही है और इसी तरह ही होगा जहाँ पे कोई कैंडिडेट होगा। क्योंकि देखिए, अवाम चाहती है कि कोई एक बंदा आगे लगे, कोई एक बंदा आगे लगे और फिर हम उसके पीछे चलें। अब आगे लगने वालों का मसला ये है कि ये खुद छुप के बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स। अब ये चाहते हैं कि इन्हें अगर किसी ने अब देखें, अगर 3000 लोगों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, तो वो क्यों जमा करवाए हैं? इसलिए कि हर बंदे को इस वक्त पता है कि अगर टिकट इस वक्त खान के नाम की है तो बंदा विनर है, हर बंदे को पता है। ठीक है, ये वजह थी कि इतने टिकट्स जो हैं वो लेने के लिए लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब मज़ा अब तब आता है जब आपका टाइम आ गया, अब जिन जिन को टिकट इशू हो गया या जिन जिन का नाम आ गया, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अब वो बाहर निकले। लेकिन अभी तक मैंने कल सिर्फ एक वीडियो देखी थी इस्लामाबाद या पिंडी की, जहाँ पे एक MNA जो है वो अपनी रैली लेके निकले हुए थे। अदरवाइज़ मैंने पाकिस्तान में अभी तक कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं देखी। ठीक है, तो अवाम चाहती है कि कोई बंदा आगे आए, और हमारे जो MPA MNAs हैं वो चाहते हैं कि अवाम हमारे हिस्से का काम करती जाए। ठीक है, तो जी अलशम्स भाई, पहले तो आप बताएं परसेंटेज कि आपके ख्याल में कितने परसेंटेज कैंडिडेट निकलेंगे खासकर पंजाब से, और कितने परसेंटेज अवाम निकलेगी? सर, परसेंटेज सिर्फ जो मैंने सिंपल सी बात की है, मेरे भाई सॉरी, बात करने दे भाई को, वो ऐसे बंदा जो ना वो बातें सही कर रहे हैं भाई, बातें करने दें उनको। जी करें भाई, आप खुल के बात करें, खुल के।
نہیں میں تو بات کھل کے کر رہا ہوں. دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جہاں پہ دیکھیں بھائی آ کے ہم لوگ بیسیکلی اس جڑ پہ نہیں جاتے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمیں دیکھیں ہم بیماری تو ختم کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہونی چاہیے, لیکن بیماری کی جڑ کیا وہاں پہ نہیں جاتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو مین پنجابیوں کا مسئلہ وہ یہ ہے. دیکھیں کے پی کے میں کیوں کسی کے گھر میں پولیس نہیں داخل ہوئی؟ قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہے نا, اس وقت سب پہ ڈنڈا چل رہا ہے. کے پی کے میں کیوں کسی کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی؟ کہ آپ نے سنا کہ کسی کی ماں بہن کو اٹھایا گیا کے پی کے میں؟ پنجاب میں آپ مجھے کوئی ایک ایم پی ایم این اے یا کوئی ایک ورکر بتائیں جس کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم پنجابی بغیرت ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی پنجابی ہوں, ہم لوگوں میں شرم نہیں, ہم لوگوں میں غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی ہمارے میں سے کسی نے اعلان کیا کہ ہمارے گھر اگر پولیس داخل ہوگی تو ہم اس کو گولی ماریں گے؟ کے پی کے والوں نے کیا تھا, کے پی کے والوں نے کیا اور ان کے گھروں میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہم لوگ مسئلہ یہ کہ ہمارے ساتھ والے گھر سے آ کے کسی کی ماں بہن اٹھائی جاتی ہے اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ویڈیو بنا کے لگا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی ہمارے ساتھ والوں پہ بڑا ظلم ہو گیا. ہم لوگ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر پہ بات نہیں آئی. مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے. جس دن ہم لوگوں نے, میں نے آپ کو سمپل ایک فرانس کی مثال دی ہے, یا امریکہ میں ایک آپ کو پتا ہے سیاہ فام کو مارا گیا تھا اور پورے امریکہ میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی کہ پولیس والے کی جرت کیسے ہوئی کسی کو اس طرح مارنے کی. اسی طرح پوری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان میں اس کا الٹ ہے. پاکستان میں مسئلہ صرف کیا ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف یہ پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہم لوگ, میں بھی اسی میں شامل ہوں, میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کر رہا, میں بھی اسی میں شامل ہوں, میں بھی اسی پنجاب کا حصہ ہوں, میں اسی پاکستان کا حصہ ہوں. اچھا ہم الماس لوگوں بھائی نے ایک بڑے منٹ, الماس بھائی ایک منٹ. اچھا نیچے جو کامنٹ لکھ رہے ہیں نا بھائی بہن, پلیز کسی قوم کو آپ بغیرت نہ لکھیں. آپ کو موقع دیتے ہیں, وہ بھائی خود اوپر بات کر رہے ہیں, بات کرنے میں ڈیفرنٹ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں میں پنجابی ہوں اور وہ پنجابی کی بات کر رہا ہے. تو نیچے پلیز کسی جی, قوم کے میں بارے میں ہاں آپ کامنٹ کسی نہ کو کریں. اس طرح ٹارگٹ نہ کیجیے گا برائے ہاں مہربانی. جی, اس کی اگر آپ ریزن کی یہ ہے نہیں کہ جب آئی بات آپ ہی فلو کو میں میں ہو رہی ہوتی ہے آپ کو اس کا سیکنڈ مطلب کروں. اور ہوتا ہے. ایک منٹ الماس بھائی, میں آپ یس, کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ایک منٹ میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. دیکھو ہمارا کام ہے نیچے پروٹیکٹ کرنا. اگر آپ نے کسی نے بات کرنی ہے آپ ریکویسٹ کرو, ہم آپ کو مائک پہ لیں گے, پھر جو مرضی آپ نے بولنا ہے. مگر پلیز کامنٹ میں کسی قوم کو نیچے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, آپ الماس بھائی آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو, آپ جی کنٹینیو کریں. سوری اگر میری بات آپ اس وے میں نہ لیں کہ میں نہیں نہیں اگر نہیں کوئی نہیں, بندہ آپ کی نہیں نیچے آ کر کے رہا, لکھے, آپ کی نہیں. بیسیکلی دیکھو الماس بحیثیت بھائی, دیکھیں. ایک منٹ الماس بھائی, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, آپ دلیر ہو, آپ منہ سے بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ہم آپ کی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں, مگر جو نیچے کامنٹ میں لکھ رہے ہیں نا وہ دلیری نہیں ہے. اگر وہ دلیر ہے وہ اوپر آئے اور پھر بات کریں. تو آپ کنٹینیو کریں, میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. اوور ٹو یو. اوکے دیکھیں, جب میں بات ایسے ہوتی ہے, دیکھیں اب ہم جیسے اب ادھر یہاں پہ یورپ میں موجود ہے تو ہماری پہچان کیا ہوتی ہے جی, یہ پاکستانی, کیونکہ پرسنلی ہم کسی کو نہیں جانتے. اس وقت میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں صوبہ پنجاب کے لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے پنجابی لفظ ہی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں اس کو اس طرح مخاطب کر سکوں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے ایریا میں ابھی تک کوئی کمپین نہیں ہے. میں کل اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایریا کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا یہ نشان ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو سارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ہماری پارٹی کے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان کی طرف سے الیکشن لڑنا ہے, تو یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ کیا یہ ساری سیٹیں پلیٹ میں رکھ کے چاہتے ہیں کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں دی جائیں؟ عوام ڈنڈے بھی کھائے, عوام باہر بھی نکلے, عوام نعرے بھی لگائے, عوام جوتے بھی کھائے, اور ایٹ دا اینڈ پولنگ سٹیشن پہ جا کے ان کو پروٹیکٹ بھی کرے, سارا کچھ یہ کرے. جب عوام کرے تو مجھے ایک بتائیں کہ ٹکٹس تو سارے ان لوگوں کو ملی ہیں جو کہ سارے چودھری ہیں, کسی عام بندے کو تو ابھی تک ٹکٹ نہیں ملی. تو پھر جب آپ چودھری بن کے آگے آئے ہیں تو پھر چودھری صاحب کا کام بنتا ہے کہ آگے لگے, ڈنڈے بھی کھائیں, عوام کے ساتھ اپنا گریبان بھی پھڑوائیں, عوام پولیس کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوں, جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر عوام کے ساتھ سامنا کریں. یہ کیسا انصاف ہے کہ عوام اکیلی باہر نکل جائے آپ کے حلقے میں سے یا کسی بھی حلقے میں سے, عوام اکیلی باہر نکل کے ڈنڈے سوٹے کھا کے خون اپنے سر پھڑوائے, جوتے کھائے, اپنا دن ایک جو ہے وہ کریں, دہاڑی اپنی توڑے, باہر نکلے. لیکن کینڈیڈیٹ صاحب کیا ہے کہ ان کو جی گرفتاری کا ڈر ہے. نہیں, اس طرح نہیں چلے گا. عوام کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ کو, کیونکہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہماری عوام اتنی دلیر کوئی نہیں ہے کہ وہ اکیلی نکلے. آپ بے شک کل دیکھ لیجئے گا, لاہور, اسلام آباد, جو مین بڑے سٹیز ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی ریلی نظر نہیں آنی. ٹھیک ہے, میں اپنے گجرات کی بات کرتا ہوں, ہمیں کہیں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم لوگ, میں نے بتایا میں 2009 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ ساری چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں, دیکھ چکا ہوں. اب مسئلہ ہمارے لوگوں کا کیا ہے, یہ سارے چاہتے ہیں کہ انہیں پلیٹوں میں رکھ کے سارا کچھ دیا جائے, جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے آزادی دے دی جائے. ٹھیک ہے, لیکن جب آزادی لینی ہے
ऑब्वियसली दोनों साइडों को, दोनों अवाम को, अब अवाम और कैंडिडेट की चूंकि बात हो रही है तो अवाम का तो आपने देख लिया अवाम कितने हद तक बाहर निकली है। खान ने अपना जो काम करना था उस बंदे ने अपने से बढ़ के काम किया, ठीक है। मेरी आपकी नस्लों के लिए मैं कहता हूं कि हमारी नस्लें भी उसका एहसान नहीं दे सकती जो उस बंदे ने कर दिया। अवाम तैयार है, आप कोई भी सर्वे उठा के देखें, अवाम तैयार है। बेसिकली इस वक्त जो अवाम चाहती है कि उनके आगे एक बंदा लगे जो उनको लेके चले। आप यकीन माने कल ये खान को बाहर निकालें, पूरा मुल्क सड़कों पे आपको नजर आएगा समेत पंजाब के। सिर्फ और सिर्फ फुकदान किस चीज का है कि पंजाबी थोड़े से डरपोक हैं, थोड़े से बुजदिल हैं। हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आगे एक बंदा लगे जिसके पीछे हम लोग चलें, बस ये मसला है। और इसके लिए कैंडिडेट्स को निकलना होगा। जब कैंडिडेट्स निकलेंगे तो अवाम निकलेगी, अदरवाइज अवाम अकेले नहीं निकलेगी। अब बात ही परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े सिटीज आप देख लें, बाकी नीचे मतलब 10 से 20% या 20 से 25% कैंडिडेट्स निकलेंगे और इनके साथ अवाम। लाहौर में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगी, बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं मुझे वहाँ पे अवाम नज़र नहीं आती अगर कैंडिडेट नहीं निकलता तो। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आप आएंगे। द रीजन मैंने आप लोगों से नंबर सबसे मांगे हैं कि देखिए हम इतवार को मंडे को आएंगे और इसी पे बात करेंगे। जैसे आपने बोला ना ये चूरी खाने वाले ये हर जगह पे होते हैं, विनिंग कैंडिडेट और पता नहीं कौन से इलेक्टेबल्स हमारी पार्टी में भी है बेशक, मगर इनको यहाँ जो हमने ओपीएफ ब्रॉड खोली है इसका मकसद ही ये है। हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मगर एट द सेम टाइम अगर हमारी पार्टी में भी कोई गलत काम करता है तो उसको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वेलकम है। आपने देखा होगा हम ओपनली हर बंदे को माइक देते हैं कि भाई आप बात करें सवाई गाली के, ठीक हो गया। तो आप डेफिनेटली मंडे को जरूर आए, ये ओपीएफ भाई को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह जब इनकी लाइव ऑन होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जितने लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं तो फिर आके आप अपना पॉइंट दे सकते हैं। तो वेरी वेल सेड। अब हमारे पास आते हैं शाहिद जी बहुत शुक्रिया। मैं कैंप इंशाल्लाह भाई।